Hello students. So today I'm here with the last topic of your chapter. Means after this your chapter is going to end. Uh, this video is going to cover lens formula, magnification and power of lens. Majorly I'm going to discuss about the power of lens and about this lens formula. Today I'm going to tell you about this lens formula only, but we are going to do the numericals on the basis of this formula in the next lecture for sure. Okay, so let's begin with this lens formula. If you remember that while studying about the reflection and about the spherical mirrors, we had learned about the mirror formula, and that was 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Similarly, we are having lens formula, and the lens formula is same. The relation between the object distance and the focal length of the lenses, of the spherical lenses, then that formula is known as your lens formula. Now, what is the difference between the lens formula and the mirror formula? If you remember, in the mirror formula, it is 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Whereas in lens formula, it is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Okay, so this is known as the lens formula, and this is very important while doing the numericals, but I'm going to take the numerical in the next lecture because numericals play important role, and that would be better that we do it in the next lecture. Okay, now the next is magnification. Magnification, the basic definition we know about the magnification, it is what? It is actually the ratio of image height to that of the object height. The definition will remain same, but there is a bit difference in the formula, which is in terms of your image distance and the object distance. If you remember, for the mirrors, then for the mirrors magnification, the formula for the magnification was minus v upon u, whereas the magnification formula for lens, it is v upon u. There is no minus sign. So this you have to keep in mind, that magnification from the lenses in terms of v and u is v upon u, whereas h dash upon h will remain same. It is common actually, either in your lens or in your mirror. Okay, one more thing I want to tell you, that whatever the sign convention we studied for the spherical mirrors, the same sign convention we have to follow for the lenses. That is, let me revise you, like if something if the object is on the left side, or if we are considering any distance on the left side of the lens, so it will be negative. If you are considering any distance which is on the right side of the lens, then it will be positive. The object, or the height which is taken above the principal axis will be positive, and the height which is taken below to the principal axis, obviously perpendicular, then it will be negative. All those rules will be applicable to the lenses in the same manner. Okay, this you have to keep in mind. Don't worry that whenever we are going to discuss about the numerical, you'll get a clear idea that how to use that sign convention even for the lenses. Okay, now the next and the important topic is power of lens. Okay, so first of all, before seeing or going through this definition of the power of lens, let me tell you that we know that lenses, what lenses do? Lenses either converge a light or diverge the light after refraction, or I should say the bending of the light takes place through the lenses, either in the converging manner or in the diverging manner. ठीक है, लेंस क्या करते हैं? लेंस आपकी लाइट को एक तरफ कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, या आप ये कहिए कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो होती है विद द हेल्प ऑफ लेंस. ठीक है, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो बेंडिंग ऑफ लाइट कन्वर्जिंग मैनर में होगी, मतलब एक तरफ इकट्ठा हो जाएगी, और अगर वो कॉन्केव लेंस है तो वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, मतलब फेंकेगी. ठीक है, तो अब ये जो है एक लेंस
कोई भी एक लेंस लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये वो जो डिसाइड होता है वो किससे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है आपके पावर ऑफ लेंस से। समझ में आ रहा है? अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको और क्लियरली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बताऊंगी। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज achieved by a lens is expressed in terms of its power. तो एक लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है रिफ्रैक्टेड लाइट को, वो किससे डिसाइड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द टर्म पावर। पावर की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो आप उससे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो लेंस है वो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है। कन्वर्ज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्ज इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। ओके, this is the general definition, but if I want to know in terms of its formula, that is the mathematical expression, then mathematical expression goes as T is equal to 1 upon F, that is the reciprocal of your focal length. ठीक है, reciprocal of the focal length, either it is convex lens or it is concave lens. अब थोड़ा सा इसका ना डायग्राम के टर्म्स में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, अभी मान लीजिए ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और इस तरीके से लाइट जो अगर पैरेलल जाती है तो हमें पता है अगर पैरेलल एक्सिस है तो कहीं ना कहीं फोकस पे वो होती है, बेंड होती है, ठीक है। तो ये मेरा एक आया, फिर ये है, फिर ये यहाँ इस तरीके से मान लीजिए लाइट है, ठीक है, ये, और फिर मान लो एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस मैंने लिया, समझेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है, फिर ये थोड़ा पास में आ जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका ऐसे जा रहा है और ऐसे होकर ऐसे हो रहा है, सॉरी ये यहाँ नहीं बेंड होगी, ये यहीं पे बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो आपका डिस्टेंस ज्यादा है कन्वर्जेंस का, ठीक है, यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर जो आपकी लाइट है वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। यहाँ से मतलब ये पैरेलल है तो हमें पता है अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो वो कहीं ना कहीं वो क्या होती है, फोकस पे कन्वर्ज होती है। तो अगर फोकस पे कन्वर्ज हो रही है तो ये आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। ये फोकल लेंथ देखो, ये फोकल लेंथ ज्यादा है, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ कंपेयर करूँ ये और ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट कंपेयर करूँ तो ये फोकल लेंथ क्या है, कम है। इसका मतलब ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, यहाँ पे देखो f ज्यादा है मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो f है वो कम है। अगर आपका f मतलब कि अगर ज्यादा दूर जाकर आपकी रेज मिलती हैं, फोकल लेंथ जो है वो बड़ा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आपका जो पावर ऑफ लेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। वाई? बिकॉज पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये है कि अगर फोकल लेंथ f आपकी ज्यादा है तो p आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसका जो पावर है लेंस का क्या होगा, कम होगा। और पावर लेंस के कम होने का मतलब है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो क्या होगी, कम होगी, मतलब थोड़ा ज्यादा दूर पे होगी। और अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका f जो है वो कम डिस्टेंस पे है, मतलब f क्या हो गया, छोटा हो गया। f छोटा हो गया तो p क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब कि वो क्या करेगा, वो ज्यादा एंगल से आपकी रे को क्या करेगा, ज्यादा बेंड करेगा। समझ में आ रही बात? तो उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। पावर ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, यहाँ पे मैंने एज इफ एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस लिया, आप चाहे तो कॉनकेव लेंगे। अगर आप कॉनकेव लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितनी रेज कितनी दूर पे वो जो रे को डाइवर्ज कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कितनी दूर पे वो कन्वर्ज कर रहा है, वैसे मैं देखती कि कितनी दूर पे वो डाइवर्ज कर रहा है। तो फंडा वही
ही रहेगा। अगर एफ आपका ज्यादा है, अगर ज्यादा डिस्टेंस पे वो क्या कर रहा है, लंबे फोकल, आपका फोकल लेंथ ज्यादा है, तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पावर कम हो जाएगा मतलब कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, कम डिग्री से होगी आपकी। और यहाँ पर क्या है, अगर एफ आपका कम है तो पावर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और अगर पावर ज्यादा होगा दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस एट द ग्रेटर एंगल। सी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइट जो है इस पॉइंट पे बेंड करेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इनवर्स रिलेशन। अब इस चीज में आपको ये ध्यान रखना है दैट एफ शुड ऑलवेज बी इन मीटर। एफ जो है आपका क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं है फोकल लेंथ तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। एसआई यूनिट जो है पावर की वो क्या होती है, डायोप्टर होती है, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। एफ जो है मैंने अभी आपको बताया, एफ शुड बी इन मीटर, दैट इज 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। तो 1/1 मीटर इनवर्स, देखो 1/1 मीटर दैट इज 1f दैट इज p। सो दिस इज व्हाट 1 डायोप्टर को हम मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव क्यों होगा, अब हमें पता है दैट पावर इज रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। अब कॉन्वेक्स लेंस है भैया आपका, आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो इमेज किस तरफ बनती है, ऑन द राइट साइड, और आई शुड से ऑन द अदर साइड। तो अदर साइड मतलब ये जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर आप ये आप फोकल लेंथ लेंगे, अगर ये फोकल लेंथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव है तो बाय द फॉर्मूला या बाय द रिलेशन आपका पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव लेंस के लिए वही क्या हो जाता है, नेगेटिव। अगर आपको याद हो दैट कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज। अगर वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका है, आपको याद हो, सॉरी यहाँ पर है, ये देखो कॉनकेव लेंस का एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, वो डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्ज होने के बाद वो क्या कर रहा है, फोकस पे आके ऑन द सेम साइड मिल रहा है। अगर इस तरफ एफ है तो बाय द साइन कन्वेंशन, मैंने आपको कहा साइन कन्वेंशन जैसा हमने स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा है सेम यहाँ पे फॉलो होता है। समझ में आ रही है बात। तो एफ जो है आपका इस तरफ आ रहा है, तो एफ अगर आपका लेफ्ट साइड आ रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर एफ नेगेटिव हो गया तो एफ से ही क्या रिलेटेड है, पावर। तो पावर भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस के लिए हमारा पावर क्या होता है, नेगेटिव। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके, देन विल सी टू न्यूमेरिकल्स, सॉरी एक और कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये कभी कदा पूछा जाता है, दिस यू कैन कंसीडर एज पावर बूस्टर। मतलब पावर बूस्टर थोड़ा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, हालांकि इस पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन आते हैं 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, बट फिर भी हम जान लेते हैं। Combination, that is suppose more than one lens is given and it is required to calculate the power of the combination। मतलब एक से ज्यादा आपको लेंसेज दिए हैं कि भाई 3 लेंसेज है और उनका कॉम्बिनेशन मतलब उन तीनों का मिलाकर पावर कितना होगा। अगर ये आपको पूछा जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और जितने होंगे वो आप आगे ऐड करते जाएंगे। अगर फोकल लेंथ के टर्म्स में मुझे ये एक्सप्रेस करना है तो 1/f P 1/f1 1/f2 1/f3 इस हिसाब से मैं कर सकती हूँ, ठीक है। ये हैशटैग आपको याद रखना है। ग्रेटर द पावर ऑफ लेंस, ग्रेटर इज द एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट द लाइट दैट पासेस थ्रू इट। जितना लेंस का पावर ज्यादा होगा उतनी उसकी ज्यादा एबिलिटी होगी रिफ्रैक्टेड लाइट को आइदर कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की। कन्वर्ज इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्ज इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। और फोकल लेंथ के टर्म्स में अगर जानना हो तो फोकल लेंथ अगर आपका कम है तो पावर ज्यादा है तो वो लाइट को ज्यादा रिफ्रैक्ट कर सकता है
either for in sense of convergence or in sense of divergence. और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, दूरी पर आपकी लाइट क्या है मिल रही है फोकस पे, फोकल लेंथ ज्यादा है, तो आपका पावर क्या होगा, कम होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रिफ्रैक्शन है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्शन का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कम लेवल पे वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द पावर ऑफ लेंस. नाउ देयर आर टू क्वेश्चन आई हैव टेकन, थोड़ा सा इसी चीज को लेकर जो हमने पावर डिस्कस किया है. पहला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हैं, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और एक जो है आस्क वाला, जो मतलब हम टेक्स्ट बुक में आपकी थियोरी के बाद जो पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5D, पॉजिटिव है और आपको पावर की वैल्यू दी है प्लस 1.5D. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. आपको क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ. पावर की वैल्यू दी है, फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है. और इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, और आपको ये बताना है कि लेंस जो दिया गया है, प्रेस्क्राइब्ड लेंस की वैल्यू है, मतलब वैल्यू के बेसिस पे आपको फाइंड करना है कि ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है. ठीक है, सबसे पहले अपन फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं. हमें पता है दैट P इज इक्वल टू 1/f. और एक चीज ध्यान रखना, P को कैपिटल P से ही डिनोट करना है. ठीक है, और इसकी SI यूनिट डायोप्टर होती है, तो उसको कैपिटल D से ही आपको बताना है. तो P इज इक्वल टू 1.5D, P इज इक्वल टू 1/f, सो F इज इक्वल टू 1/P. 1.5 देखो मीटर में दिया है, मतलब डायोप्टर में दिया है, इसका मतलब कि फोकल लेंथ आपकी जो एक्सप्रेस होगी वो क्या होगी, मीटर के टर्म्स में ही होगी, बिकॉज डायोप्टर और मीटर का सीधा सीधा रिलेशन है. 1D इज इक्वल टू 1/1 मीटर या 1 मीटर इनवर्स. समझ में आ रही है बात. तो यहाँ पे फोकल लेंथ मैंने फाइंड किया वो मीटर के टर्म्स में. ठीक है, अब आपको पता है F इज पॉजिटिव. अगर F पॉजिटिव है तो F पॉजिटिव किसमें है, अभी हमने डिस्कस किया कॉन्वेक्स लेंस के लिए. कॉन्वेक्स लेंस के लिए F जो है वो पॉजिटिव होता है. अब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो किस तरीके का लेंस है, वो डाइवर्जिंग लेंस है. तो आपका दूसरा आंसर भी मिल गया, दैट F इज पॉजिटिव, लेंस इज कॉन्वेक्स, विच इज कन्वर्जिंग इन नेचर. तो वो क्या होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर है, तो वो भी आंसर मिल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. ठीक है, मतलब आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस के 50 सेंटीमीटर दूरी पर जो एक इमेज फॉर्म हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, where is the needle placed in front of the lens if the image is equal to the size of the object, also find the power of lens. अब हमें ये देखना है कि भाई हम ऑब्जेक्ट को ऐसी कौन सी जगह रखें, लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को ऐसी कौन सी जगह रखें जिससे कि इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट के सेम हो. ठीक है ना, यही बोला है उन्होंने, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज मतलब हाइट की बात हो रही है. ठीक है, कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट हाइट के सेम हो. और हमें फिर पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है. आपको V दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, आपको V दिया गया है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, देखिए इमेज, तो आपको V दिया गया है. अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको याद हो कि हमने जो केसेस डिस्कस किए फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ऐसे कौन सा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट सेम होती है. That is when the object is placed at 2f1. ठीक है, 2f1 पे जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखती हूँ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखती हूँ, तो मेरा जो इमेज हाइट है वो क्या होता है, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, हमको सेम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम है, मतलब वो वही केस है. ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं इसमें क्या है. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है और कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्वियसली बात है आपको इमेज फॉर्मेशन याद हो, तो रियल एंड इन्वर्टेड वो दूसरी तरफ राइट साइड बनती है, राइट साइड है, तो अपना V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सिर्फ. ठीक है, तो V पॉजिटिव हुआ 50 सेंटीमीटर. H dash is equal to H, it is given to you, so it is possible when object is placed at 2f1. अब भी बताया मैंने आपको
तो आपको u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो इमेज भी आपकी कहाँ बनती है, एट 2f2। 2f2 का मतलब क्या हुआ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे। मतलब कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर आप चाहे इस तरफ लो चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ लो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी ना। सेम ही स्फेरिकल शेल से लेंस बनाया होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेम ही होगा। तो मतलब कि अगर आपका इमेज 50 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट भी आपका 50 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखा गया होगा। मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिया, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है कि अगर आपका v 50 सेंटीमीटर है तो u भी आपका क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f हमारा क्या होता है, f होता है हमारा 2f2, मतलब कि this distance, this is what, this is actually 50 centimeter is what, this is equal to 2f which is equal to 50 सेंटीमीटर। 2f मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप चाहे राइट लें आप लेफ्ट लें, वो f1 f2 सिर्फ राइट लेफ्ट मतलब इधर उधर करने के लिए बताया जाता है। मुद्दा तो ये है कि 2f इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो f आपका कितना हो जाएगा 50/2, जो मैंने यहाँ किया है 50/2, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1 ये हमारा आ गया f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए पावर में मैं डाल रही हूं तो मैंने 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका जो फोकल लेंथ है दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो 1/0.25, 100/25 दैट इज 4, सो 4d। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। तो इन्होंने पूछा था ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, हमने पावर ऑफ लेंस फाइंड कर लिया। और उन्होंने पूछा था कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, तो ऑब्जेक्ट तो केस के हिसाब से वो भी हमने बता दिया दैट विल बी प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट all about the numericals on the basis of your power of lens. ठीक है, in the next lecture we are going to discuss about numericals on the basis of your lens.